वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक झटके देते जा रहा है। कभी वो खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत पन्नू को अपने प्रोग्राम के अंदर बुला लेता है, फिर उसके बाद वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर उसको रेफरेंडम की वोटिंग करवाने के लिए परमिशन दे देता है। इससे पहले इधर प्रधानमंत्री मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है और इंडिया के अंदर तुलसी गायकवाड आती है। रक्षा मंत्री तुलसी गायकवाड को कहते हैं कि खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू को पकड़कर जेल के अंदर डाल दो। लेकिन उसके ही एक हफ्ते के बाद खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू वो अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग करवा देता है। परमिशन है वो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम ने दी थी। अब इसके बाद वॉशिंगटन डीसी के बाहर फिर से जो वोटिंग होने वाली है, इसकी परमिशन भी उसको डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने दी। इसके लिए उसने पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम का धन्यवाद कर दिया। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पिछले दिनों जो भारत दौरे के ऊपर आए थे, जिस समय 22 नेशन देशों के जितने भी खुफिया विभाग के मुखिया है वो भी इंडिया के अंदर आए थे, तो उस समय न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री गुरुद्वारा साहिब के अंदर माथा टेकने गए, तो वहां पर भी आके उन्होंने सिखों के बारे में काफी सारी बातें बोली। लेकिन उसी समय एक और नया वीडियो निकलकर सामने आ गया। सबसे पहले मैं आपको जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है इनका ये वीडियो दिखा देता हूं। ये छोटा सा वीडियो है, वीडियो कम दिखाऊंगा मैं आपको, ऑडियो इसकी ज्यादा सुनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो का जो कॉपीराइट है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहां पर इन्होंने सिखों के बारे में जो जो बातें बोली है ये आपको हैरान कर देगी। इसके बाद मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाऊंगा जिसे भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी कहती है गुरपतवंत सिंह पन्नू। इस बंदे ने भी एक नया वीडियो जारी किया, इसका भी ऑडियो सुनाऊंगा मैं आपको। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर घूम रहा है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का ये वीडियो देखते हैं, इन्होंने अब सिखों के बारे में क्या कुछ बोल दिया है। Legal and it is appropriate. But that's what I expressed very strongly, promised to Modi, and what I've said publicly and privately. If the Al-Qaeda or the ISIS were to hold a referendum, if organizations like the Al-Qaeda or ISIS were to hold a referendum in New Zealand about something related to one of your Western partners, would you say the same? Well, again, the key thing for us is that we have very well-defined laws in our democracy around the freedom of speech, and we expect people to be compliant with those laws, that they have a complete right to protest, but they have to do so in a way that is legal. And when it's not the case, that's when our police, who we have huge respect for, that do an excellent job in New Zealand of enforcing our laws, it's important that they're upheld. And so it's as simple as that for us. It's very much a case of we expect people to exercise their protest. They're entitled to do so in a democracy. It's important. But equally, we expect that actually they are compliant with our laws at any point of time. Sikhs for Justice is a banned terrorist organization according to the government of India. And it operates in New Zealand as the leader of a country that is exploring a deeper partnership with India. Are you willing to be open to these concerns from New Delhi on acting against groups which India perceives as threats? Well, I've heard the broad perspective of the Indian government around that particular issue, but as I keep coming back to you to say, as a sovereign, as a democracy that respects sovereign borders and sovereign nation states, we have strong laws in our system to protect free speech, but also to ensure that free speech is compliant with our legal system. And that's what, as a New Zealand Prime Minister, that's what I want to make sure we uphold in our society. And so we'll continue to, we as I said, we really are proud of free speech, but we also expect free speech that comes with some responsibilities, and that is to make sure that it's fully compliant with our legal framework as well. You went to a Gurudwara with Prime Minister Modi yesterday. Did you have conversations with the Indian leadership on this particular point? महिला एंकर यहाँ पर इनसे खालिस्तान के बारे में सवाल पूछती है। मैं आपको इसकी डिटेल सहित जानकारी देता हूँ कि इनसे पूछा गया कि भारतीय सरकार ये कहती है कि एसएफजे एक आतंकवादी संगठन है, गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी आतंकवादी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये लोग आपके देश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं और वहां पर रेफरेंडम की वोटिंग करवाते हैं। अब इसके ऊपर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर फ्रीडम टू स्पीच है, बोलने की आजादी है, सभी को बोलने का हक है और वहां पर आप किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट कर सकते हो। सरकार से मंजूरी लेकर आप रेफरेंडम की वोटिंग करवा सकते हो। आपको जो हक मिला है कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए आप उनका पालन करते हुए आप अपनी बात रख सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार के सामने, मतलब एसएफजे आतंकवादी संगठन हो सकता है, लेकिन हमारे सामने तो उन्होंने ऐसी कोई भी चीज नहीं की जिससे हम उनको आतंकवादी संगठन बोल सकते हैं। खालिस्तान की परिभाषा उन्होंने
अपने शब्दों के अंदर बोली। उन्होंने ये भी बोला कि न्यूजीलैंड के अंदर ये जो रेफरेंडम की वोटिंग है, हमारी जो पुलिस है वो पुलिस ही स्वयं जाकर करवा रही है, पुलिस ही इन लोगों को प्रोटेक्शन देती है, पुलिस के सामने ये सारी चीजें पहले अप्रूव होती हैं, इसके बाद ही हमारा जो कानून है वो कानून का पालन करके फिर रेफरेंडम की जो वोटिंग है न्यूजीलैंड के अंदर होती है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इस प्रकार से चंद शब्दों के अंदर वो सारी बात बोल देते हैं जिसके ऊपर भारतीय प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और यहाँ पर हमारे जो जेम्स बॉन्ड साहब है अजीत डोभाल, ये भी बार बार कहते हैं कि एसएफजे को अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर बैन किया जाए। और इस बार इन्होंने जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इंडिया आए तो इन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को भी यही बात बोली कि आप इन लोगों को बैन कर दीजिए। लेकिन उन्होंने इनको ना तो बैन करने के बारे में बोला, उन्होंने कहा कि हम किसी को बैन नहीं करेंगे, हमारे देश के अंदर बोलने की आजादी है और सभी को समान अधिकार मिलता है। दोस्तों अब इसके बाद मैं आपको एक और छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, वीडियो सुना देता हूं। ये है खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू का छोटा सा वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, उसका ये जो वीडियो है ये सुना देता हूं, बाकी की बात इसके बाद में करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज खालिस्तान रेफरेंडम पक्षी सिखा ने भगत सिंह मेमोरियल पिंड मोरावाली नरेंद्र मोदी उस भगत सिंह नूं अपना प्यो दसदे है, उस भगत सिंह नूं जिन्ने 8 अप्रैल 1929 नूं दिल्ली असैंबली दे विच बंब धमाका कीता सी। अज ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਚੜਾਉਣਗੇ ਝੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਸ ਭੰਡਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ कि उन्होंने फिर इंकलाबी तक खालिस्तानी दसेगा। तो ये था इस बंदे का वीडियो। आप लोग जानते होंगे पिछले दिनों लॉस एंजलिस के अंदर, अमेरिका के अंदर वोटिंग हुई थी रेफरेंडम की। उस वोटिंग के लिए परमिशन भी इनको डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने दी थी। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अंदर उन्होंने एलन मस्क को अपना एक खास मित्र बताया है। उन्होंने शरेआम इस बार बोला कि जो एलन मस्क है वो मेरा एक खास बंदा है, खास दोस्त है। पंजाब के अंदर एक फौजी है, 2 फौजी भाई हैं, दोनों ही भाई फौज के अंदर काम करते हैं और तकरीबन साल 2017 के अंदर इन दोनों ने अपना एक मकान बनाया था। लेकिन इसके बाद से तकरीबन 2022 या 23 के बाद में आसपास में कुछ फैक्ट्रियां बन गई, जिनके कारण उस मोहल्ले के अंदर लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जिसके बाद उन लोगों ने पूरे मोहल्ले ने इकट्ठे होकर बहुत बार कंप्लेंट की, शिकायतें दी, लेकिन इनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई। ये इनकी पूरी बात क्या है मैं आपको वीडियो के माध्यम से सुनाना चाहता हूं, आप जरा इनका वीडियो सुनिए। सत श्री अकाल, मैं डिस्ट्रिक्ट मानसा बुढ़लाडा शहर पंजाब का रहने वाला हाँ। असी 2 भरा, दोनों फौजी हाँ। मैं हमेशा जिंदगी च हर बंदे की सपोर्ट की है, हेल्प की है, पर मैं अज वो मुकाम ते खड़ा कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। मैं मकान बनाया, साडे फादर की डेथ हो गई, उस तो बाद असी दोनों भरावां ने मेहनत करके मकान बनाया। उहदे लागे कोई इंडस्ट्री नहीं सी मकान दे लागे, लेकिन कुछ अमीर बंदे जिन्हां दे 5-7 प्राइवेट स्कूल है, पेट्रोल पंप है, उन्होंने उहदे लागे इंडस्ट्री लगा ली। 2024 च असीं 2017 च मकान बनाया। साडे लगे हर एक प्रूफ है उन्हां दा कि जमीन सेल हुई है। 14 च मीटर नवे लगे, 24 च ठीक है, मशीनां दे बिल, हर चीज असीं दे चुके हैं बुलाडा एसडीएम नूं, पर साडी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुलाडा एसडीएम ने फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिते साडे आवाज सुनने की बजाय। मैं ये पूछना चाहना ये ऑफिसरां नूं, मैं इन्हां नूं ये पूछना चाहना पंजाब सरकार नूं कि कदों तक जुर्म करोगे फौजियां ते तुसीं, कदों तक? अब आप लोगों ने ये फौजी साहब का, फौजी भाई का वीडियो देखा। इनकी आईडी मैं आपको बता देता हूँ, संधू फौजी PB31। तो इन्होंने अपने पेज के ऊपर ये जो वीडियो है डाला, इन्होंने बताया कि इलाके के अंदर कितनी कंप्लेंट्स दे दी है, लेकिन पंजाब सरकार और ना ही पंजाब सरकार का कोई अफसर इनकी कंप्लेंट को सुन रहा है। तो इसके ऊपर तो सवालिया निशान है। फैक्ट्री वहां पर होनी चाहिए जहां पर 10-10, 15-15 किलोमीटर तक कोई भी घर नहीं होता है। तो दोस्तों ये वो सारी अपडेट्स थी। कर्नल बाट वाले मामले के अंदर अभी तक कर्नल बाट को न्याय नहीं मिला। अब ये जो फौजी भाई हैं ये भी यहाँ पर सामने आ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ